particular event which takes place during Akshaya Tritiya, there is an elaborate attempt to make sure child marriage is solemnized. And that is why on such particular occasions, we have, through the Commission and the government, ensured that there is an awareness done and reportage is thereunder done. But I would like to tell the Honourable Member that these issues have been duly considered when the amendment to the Bill of Child Marriage was produced before the Parliament. Thank you. Honourable Shri Vinay Vishwamji. Thank you, sir. Sir, in part B of the answer, the Honourable Minister informed the House, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effects. Thank you. Sir, exception to Section 375 of the IPC is inconsistent with the provision of this POSCO Act. In that case, I can tell you, it sometimes even promotes even marital rape. So will you take the steps to overcome these intricacies or the difficulties in these questions? The fact that the Honourable Member would like to incite and elicit a response on the issue of marital rape when we are talking about the concerted efforts done by society at large in collaboration with governments on the issue of child marriage. I have stated my position vehemently in front of the Honourable Member in this very House on that said issue, and I think my position now rests. Honourable Dr. Fawzia Khanji. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, when we actually go into a village, we see that people, when we talk about child marriage, they tell us that keeping a girl doing nothing till the age of, say, 18 or 21 or whatever, we wouldn't want to do that because my daughter is not secure. The girl herself wants to get married. So I would like to ask the Honourable Minister, as Dr. Ami Yajnik has raised the point, how do we ensure that girls are kept occupied in some productive work, skill development, education, something which occupies their mind till they reach a marriageable age? The country marry because they are unoccupied, I think is an anomaly which needs to be corrected, and specifically young girls who choose marriage because they have nothing better to do. I hope that the member would retract that position. However, in terms of safety and security, I must here elicit a response from my department, which has successfully implemented the One-Stop Crisis Center program of the Honourable Prime Minister. Over 704 such crisis centers are currently operational in the country across all these districts. An additional 300 centers have been pronounced in the Union Budget recently. And I must here highlight to the Honourable Member that in collaboration with over 30 women helplines in the country, 7 million women have been provided safety, security, especially when they've been victims of violence. The government is committed to protect women and especially young girls from violence or, for that matter, insecure means in society that they are confronted with. Question 293, Shri P. Wilson ji. Oh, sorry, 292. Question 292, Shri Ravati Raman Singh ji. I'm sorry, Wilson ji. 292, sir. Honourable Minister. जवाब सभा पटल पर रखा है. First supplement. माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि बेटियों का जन्म, उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विज्ञापन और उसके प्रचार प्रसार में बड़ा हिस्सा व्यय होता है. क्या इस योजना से समाज में कोई परिवर्तन आया है? देश में लिंगानुपात में कोई बदलाव नजर आता है कि नहीं आता? Honourable Minister. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सांसद सभ्य से बहुत ही एक्टिव है और ऑलवेज उसका कुछ न कोई स्टार या स्टार क्वेश्चन में ऑलवेज में उसका कोई न कोई प्रश्न का उसकी प्रेजेंस रहती है, इसलिए पहले तो उसका धन्यवाद मैं करता हूं. और साथ में ही एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बारे में बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारी देश की बेटियों में सेक्स रेशियो का जो प्रमाण है बहुत ही कम हो जा रहा था. तो माननीय
प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 में एक स्कीम लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे क्या कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है वो कम हो और वुमेन और गर्ल्स एम्पावरमेंट हो और सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन हो और बच्चियों का सर्वाइवल बढ़े, प्रोटेक्शन बढ़े। इसकी वजह से ये स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम के लॉन्च करने के बाद अभी 19% बढ़ोतरी जो बच्चियों का जन्म दर उसमें बढ़ोतरी है। 1000 मेल चाइल्ड में अभी करीब 938 अभी लड़कियों का रेशियो वो काफ़ी आगे आ गया है। तो ये स्कीम बहुत ही असरकारक हो रही है। अब आभार। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या लड़कियों को शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 फीस लेने की कृपा करेंगे, जिससे कि बेटियां आगे पढ़ के बढ़ सकें। आपकी अनुमति से माननीय सांसद श्री को बतलाना चाहूंगी कि जहां तक महिला और शिक्षा की बात है तो हमारे देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार। साथ ही हमारे शिक्षा विभाग ने स्वयं नाम का एक पोर्टल भी प्रतिस्थापित किया देश में, जिसमें अल्प मूल्य पर उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ये भी कहना उचित होगा मान्यवर आपके माध्यम से माननीय सांसद श्री को कि जहाँ तक पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने कहा, एक चिंता व्यक्त हुई है कि जो बच्चियाँ शिक्षित होती हैं उनकी बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है। विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हमारा विभाग अब शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर देश में 5 लाख से ज़्यादा बेटियां जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको दोबारा स्कूल में प्रतिस्थापित करने के लिए कन्या प्रवेश उत्सव भी मना रही है। बेटियों और महिलाओं की शिक्षा पूर्ण रूप से संभव हो सके देश में, इसके लिए सरकार समर्पित है। माननीय रामीला बेन बारा जी। धन्यवाद। माननीय सभापति जी, मोदी सरकार बेटियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है, मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ कि आज देश भर में राज्यवार लड़के के सामने लड़कियों की स्थिति क्या है, सबसे गंभीर स्थिति कौन से राज्य में है? माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जब से लॉन्च हुआ है तब से प्लीज ये हमने देखा है कि 19% की बढ़ोतरी हुई है और जो स्टेट में कमी अभी भी है वो स्टेट का हम हमारे माननीय संसद सभ्य श्री को ब्यौरा अभी हम अपनी ऑफिस में बुला के अभी दे देंगे। थैंक यू। माननीय श्री विजय साई रेड्डी जी। The mic, yeah. Now it's on. Sir, as per Parliamentary Committee on Empowerment of Women, out of the total 447 crores released during 2016 and 19, 79% was spent on media advocacy. This is despite a clear laid down framework for utilization of funds. What are the reasons for such lopsided spending under this scheme? Sir, the honourable member, through you, should be informed that the scheme is such that district administration receives 50 lakh rupees from the government of India to propagate the cause of the girl child. It is at the discretion of the district administration to ensure that they can spend the money either on awareness campaigns or on campaigns with regards to education of young girls, or for that matter, emancipation and enhancement of their health benefits. And hence, given the spirit of cooperative federalism, we have in engagement with state governments, appeal to state governments to ensure that the secretaries of the concerned department ensure that the money is well spent.
advocacy, as has been articulated by the Honorable Minister of State, has resulted in this becoming a Jan Andolan, so much so that the sex ratio at birth has increased by 19 points. So much so I would like to compliment states such as, let's say, Arunachal Pradesh, where for every 1,000 male births, you have an equivalent of girl child births. But we would like to Honourable Minister, highlight... time is over for the questioner. The House stands adjourned till 2 p.m. चाहता हूं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, जिसमें ये तो बताओ, राजस्थान गौरव समृद्धि का प्रदेश है, राजस्थान जहाँ की अमर गाथाएं हैं, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान के शक्ति और भक्ति का प्रदेश है राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से देश और दुनिया भली भांति परिचित है। और जैसा आपने बताया, वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर हो, पधारो हमारा देश, वहाँ के रेतीले दोहरे और वहाँ का गौरवशाली इतिहास और वहाँ के मॉन्यूमेंट हो, चाहे वहाँ की झीलें हो, चाहे वहाँ की संस्कृति हो, चाहे वहाँ के पहाड़ हो, ये सब लोग देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। पिछले 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें राजस्थानी भाषा नहीं है अध्यक्ष महोदय। पिछले काफ़ी वर्षों से साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी साहित्य लेखन पर निरंतर पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समाचार और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सिलेबस में व्यवहार में लाया जा रहा है। महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और भाषा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है कि स्कूली शिक्षा मातृभाषा में हो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता लंबे समय से इसकी मांग करती आ रही है और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते और यहाँ की संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं। अध्यक्ष जी, एक सिर्फ आधा मिनट में, इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि राजस्थान की जनता की भावना को देखते हुए इस पर विचार किया जाए और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर। आई एम स्टैंडिंग with solidarity of a late doctor, sir. Sir, I'd like to bring to the notice of this house, sir, one pathetic incident was happened yesterday at Dausa, Rajasthan, sir. Dr. Archana Sharma, gold medalist and a senior doctor, committed a suicide, sir, by writing a suicide note when cops directly filed a case under section 302, murder without any investigation, sir. After the death of a pregnant lady due to the serious maternal complication PPH, sir. Sir, one has to understand the difference between the the medical negligence and the complications, sir. Sir, therefore, I urge the government of India to intervene and to take action against the culprit, sir, and formulate stringent laws. Sir, formulate a stringent laws. This kind of incident shall not repeat and stop harassing the doctors, sir. Sir, I wanted to read out a few points, sir. Sir, 1 minute, sir.
Sir, sir, Okay, it shall be Satpal eye Singh ji. opener, sir. It shall be eye opener for everybody, sir. Sir, in the note, sir, अध्यक्ष जी। she mentioned, sir. आपका मैं सतपाल सिंह जी। सर आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इनका माइक। Should not feel. सतपाल सिंह जी। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से बागपत की जनता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने कई जो है अच्छी सड़कें दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली से लोनी से लेकर के मेरे क्षेत्र तक लगभग 20 किलोमीटर की रोड इतनी खराब है कि लोग वहाँ गाड़ियाँ टूटती हैं, लोगों की कमर टूटती हैं। रोड पिछले 3 वर्षों से मेरे सारे निवेदन असफल रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय जो है महामार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस सड़क को जल्दी से जल्दी इसका पुनर्निर्माण किया जाए। श्री के सुरेश जी। Thank you, Speaker, sir. I am raising very important matter with regard to invitation from the Government of India. So the global pandemic and ongoing war in Ukraine has resulted delivering unintended consequences for a large number of students pursuing medical education from China, Philippines, and Ukraine, as both pandemic and the war has brought the education of 10,000s to stand still with no indication of any resumption. The students who have availed huge loans are on the verge of a disaster as prolonged travel bans to China and Philippines. The complete destruction of infrastructure in Ukraine had made their future prospect uncertain. Sir, I am not going into details, sir. You are very much aware. The House is also very much aware. So I would like to request Honorable Government, especially External Affairs Minister, give a clarification. What the government is going to do for these students. Last week, thousands of students and parents had a demonstration in the Jantar Mantar to support of government of India. So I would like to request government to make a श्री DS शिवचारी जी। the students' education, medical education. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान की जाती है। प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान है। मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर में अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल मंदिर हैं। स्वामी समर्थ मंदिर, शिवयोगी सिद्धरामेश्वर मंदिर, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं, सोलापुर जिला में आने वाले तथा सोलापुर से लगे हुए अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल का समावेश प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री नरेंद्र कुमार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के झुंझुनू संसदीय क्षेत्र की चिड़ाव पंचायत समिति के नड़ ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाने के संबंध में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगुनी करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 14 जिले ऐसे हैं जिनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मैं झुंझुनू जिले के चिड़ाव पंचायत समिति की नड़ ग्राम पंचायत के कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाने बाबत 92 हेक्टेयर भूमि का नरड़ पंचायत के प्रस्ताव लेकर मैंने वर्ष 2020 में कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को भिजवा दिया था और ग्राम पंचायत नरड़ की तरफ से 92 हेक्टेयर भूमि की NOC हमें प्राप्त है। ज़्यादातर समस्या कृषि विज्ञान खोलने के लिए ज़मीन नहीं मिल पाती है, जबकि नरड़ ग्राम पंचायत ने 92 हेक्टेयर भूमि की NOC दे दी गई है। इसलिए मैं नरड़ ग्राम पंचायत में झुंझुनू जिले के संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान खुलवाने की बी मेहताब जी जरिए निवेदन चाहता हूँ। श्री बी मेहताब जी। Thank you, sir. Sir, I draw the attention normally in 0 hour. Members draw the attention of the government through you, sir.
but I draw your attention relating to this issue. This issue relates to Parliament House complex. 205 years ago, in 1817, a general, Bakshi Jagabandhu Vidyadhar, led an armed struggle against the British. And it continued for not less than 15 years. And that is termed as the first war of independence. Of course, Veer Savarkar in writing 1857 as the first war of independence, and many people also accept it. But the first war of independence against British, I would say, continuous struggle against the British government continued from Battle of Plassey, when the subjugation of East India Company started. I would just like to mention here, in the late 90s of last century, perhaps in 1996-97, a resolution was made in the General Purpose Committee to install major equestrian statue. One was of Bakshi Jagabandhu Vidyadhar, and the second was of Rani Jhansi Lakshmi Bai. But subsequently, during the UPA regime, after 2004, these two equestrian statues has been stalled. My request to you, sir, is to allow, because the state government of Odisha has agreed to provide, already the statue has been prepared. And the state government of Uttar Pradesh also will be willing to provide Rani Jhansi's equestrian statue. And we have आप वरिष्ठ सदस्य संसद के मामले में एक कमेटी बनी हुई है इसके मामले में, इसलिए आप तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं सर, एक लाइन सर, एक लाइन। अभी हाल ही में एक चैनल में विद्रोही नामक एक सीरियल चल रहा है, उसको अगर सारे मेंबर देखें कौन से चैनल? विद्रोही चैनल का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उसको अगर देख ले तो पूरा इतिहास आ जाएगा। जय पन्ना का चैनल इतिहास में ना, हिंदी में, और इसमें पूरा इतिहास आ जाएगा। और ये भी हमारे इतिहास पुस्तक में इतिहासकार को लिखना पड़ेगा कि किस तरह उड़ीसा में स्ट्रगल हुआ था, आर्म स्ट्रगल हुआ था। धन्यवाद सर। स्वागत राय जी। सर, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आज एडजॉर्नमेंट मोशन में मैंने ये मेंशन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दो एजेंसी सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल कर रहे विरोधी राज्य सरकार पर। सर, ममता बनर्जी ने, हमारी मुख्यमंत्री, एक चिट्ठी लिखा है। सर, ये पागल है, ये पागल है। नो सदन की कार्रवाई, सभा की कार्रवाई, ये शब्द निकाल दो, ये शब्द ठीक नहीं है। जो माननीय सदस्य आपने बोला है वे माननीय सदस्य है और आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नो, गलत, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस भाषा का उपयोग नहीं। सभा की कार्रवाई 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है।